Hello everyone, I warmly welcomes all of you in today's session. As in the last sessions we have been started with Unit 3 Construction of Road Permits, which is for 16 marks according to MSBG curriculum. In this, following are the contents that we have to elaborate one by one in the chapter. With this we started point number 1, that is types of road materials and their test. We seen aggregate material and on that which tests are to be performed. As in the last session we have been studied flakiness and elongation index test, angularity number test on aggregate sample. So I hope you understood all the both the tests that are to be performed on coarse aggregate sample. In today's session we will start test on bitumen sample. कौन से टेस्ट हम लोग बिट्यूमन के ऊपर परफॉर्म करते हैं बिफोर यूजिंग और चूजिंग एनी टाइप ऑफ बिट्यूमन. So as you know, there are the different types of cements also, or the grades of cements also, like 43, 53, 33. So this value, what is this value? This value is indicating how much strength will cement achieve after getting stronger, after getting formed. Likewise, in the bitumen also, there are few grades like 80 by 100, 90 by 100, 60 by 100. So with the help of the 100 gram or 100 gram application of load, how much penetration value will be there? So one instrument is there, that is standard penetrometer. With the help of this, penetration test is performed. Likewise, we will see test to be performed on bitumen sample as penetration test, ductility test, flash and fire point test, and softening point test. Penetration test, word is indicating plunger is getting penetrated into a bitumen sample and the penetration value will show you grade of bitumen. Also this test is to be performed to know hardness and the consistency of grade of bitumen. जैसे कि हम लोगों ने बिट्यूमन के टाइप्स पढ़े थे, एस्फाल्ट, टार एक्सेट्रा. उसमें कोई सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड है, लिक्विडिफाई है, तो उसका नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग ये टेस्ट करते हैं. प्लस वो कितना लोड या टेम्परेचर के हिसाब से वो कब मेल्ट होना शुरू होता है, राइट. सो सच वैल्यूज कैन बी टेकन और आइडेंटिफाइड इन दिस. Okay, so in this test, sample is prepared by softening the material to pouring a consistency between 75 degree to 100 degree Celsius. मतलब इसमें हम लोग बिट्यूमन का सैंपल लेते हैं और उसको मेल्ट करके इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए टेस्ट करते हैं. नेक्स्ट आता है अपना डक्टिलिटी टेस्ट. डक्टिलिटी टेस्ट में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि बिट्यूमन सैंपल जो है अपना टेम्परेचर के हिसाब से कैसे चेंजेस होते हैं उसमें. ओके, कितने पॉइंट तक वो आपकी इलास्टिसिटी परफॉर्म कर सकता है और कितने टेम्परेचर पर या कितने लोड के ऊपर वो ब्रेक हो जाएगा. सो दिस प्रैक्टिकल इज टू बी परफॉर्म और द टेस्ट डक्टिलिटी इज टू परफॉर्म टू डिटरमाइन द इलास्टिसिटी नेचर ऑफ एन पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिट्यूमन. नेक्स्ट आता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट. इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कौन से टेम्परेचर पे, मैक्सिमम टेम्परेचर पे आपका जो बिट्यूमन सैंपल है वो फायर कैच करेगा एंड कौन सा टेम्परेचर है या कितने टेम्परेचर के ऊपर बिट्यूमन सैंपल मेल्ट होना शुरू करेगा. सो देर आर फ्लैश एंड फायर पॉइंट्स. एंड लास्ट इज सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट. सो वी विल स्टार्ट विथ पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिट्यूमन. Penetration value test on bitumen is measure of hardness or consistency of bituminous material. So this will be the aim of the test. This test is performed to measure hardness or consistency of bituminous material. So what is the concept of consistency? As you know the difference between water and honey, which is more floating, water is more floating as compared to the honey.
So this is the consistency of that liquid, that how it is being flowable, like its consistency is there. A 80 by 100 grade bitumen indicates that its penetration value lies between 80 and 100. So ये क्या हो गया आपके बिट्यूमन का ग्रेड, कि जो बिट्यूमन सैंपल है दैट इज शोइंग 80 mm पेनिट्रेशन वैल्यू ऑन अ गेज. This type of instrument is used to find out the penetration value of an bitumen sample. As in the image you can see, on the central rod, dial gauge or the dial for measuring penetration value is being attached. With the help of that, a weight is being attached, and to that weight one plunger is being attached. This plunger will get allowed to penetrate into a bitumen sample. ठीक है, यहाँ पे सैंपल का जो एरो दिख रहा होगा, उस सैंपल में मतलब हम लोग वहाँ पे कंटेनर रखते हैं, उस कंटेनर में हम लोग बिट्यूमन का सैंपल रखते हैं. एंड फॉर हैविंग अ लेवल्ड प्लेटफॉर्म वी आर हैविंग अ स्पिरिट लेवल एट द लेफ्ट साइड. So what is the apparatus? First is penetration apparatus. Second will be needle or the penetrometer. Third container जिसमें हम लोग बिट्यूमन का सैंपल रखेंगे. वाटर बाथ, इस बिट्यूमन का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसके अगेन हम लोग नीचे एक बीकर रखेंगे जिसमें वाटर प्लेस करेंगे, या सिंपली कंटेनर आप बीकर में रखो और वो पूरी असेंबली पेनिट्रेशन नीडल के नीचे प्लेस कर दो. थर्मोमीटर फॉर वाटर बाथ, उसमें हम लोग एक थर्मोमीटर ऐड करेंगे टू नो एट व्हाट टेम्परेचर योर बिट्यूमन इज गेटिंग हार्डन, एंड स्टॉप वॉच टू मेजर द रीडिंग्स. यहाँ पे हम लोग पहले ये सेशंस में थ्योरेटिकल कंटेंट देख लेंगे. विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस लिंक यू विल नो हाउ दिस प्रैक्टिकल इज बीइंग परफॉर्म इन एन लैबोरेटरी और ऑन एन पर्टिकुलर बिट्यूमन सैंपल. सो आई जस्ट सजेस्ट यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो please go through that link. That is a reference link which will show you or elaborate you knowledge regarding performance of these tests practically on bitumen sample. So this is a penetrometer, as that was a schematic diagram. This is the actual image of an instrument. यहाँ पे क्या है, सेंट्रल रॉड है, उस रॉड पे एक डायल गेज लगा हुआ है और जस्ट डायल गेज के नीचे एक नीडल लगा हुआ है विच एक्ट एज एन पेनिट्रेशन और पेनिट्रोमीटर. और यहाँ पे नीचे छोटा सा हम लोगों ने कंटेनर रखा है जिसमें हम लोगों ने बिट्यूमन का सैंपल लिया है. ठीक है, सी. और इसके अराउंड जो आपको वाटर बाथ बनाना है, वो वाटर बाथ हम लोग जो लेफ्ट साइड की इमेज है उसमें आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा कि वाटर बाथ हम लोग किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे. एक बीकर ले लेंगे जिसमें वाटर हम लोग फिल करेंगे और उसमें हमारा ये छोटा कंटेनर विद बिट्यूमन सैंपल हम लोग प्लेस करेंगे टू मेंटेन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द टेस्ट. So what is the principle of this test? It measures the hardness or softness of bitumen by measuring the depth in tenths of a millimeter to which a standard loaded needle will penetrate vertically in 5 seconds. मतलब हर 5 सेकेंड के ऊपर हम लोग रीडिंग लेंगे. ये पेनिट्रोमीटर रहेगा, पेनिट्रेशन या नीडल जो भी है, नीडल के ऊपर कितना लोड हो रहा है, 100 ग्राम लोड कंटिन्यूसली अप्लाई होते रहेगा और हर 5 सेकेंड्स के ऊपर हम लोग इसका पेनिट्रेशन कितने mm से पेनिट्रेट हुआ वो रीडिंग लेंगे. जैसे कि इन द लेफ्ट साइड यू कैन सी बिफोर हम लोग नीडल कहाँ प्लेस करेंगे, बिट्यूमन सैंपल के टॉप तक सरफेस को टच करके हम लोग रखेंगे. देन हम लोग उसको ड्रॉप डाउन कर देंगे. ड्रॉप डाउन करने के बाद क्या होगा, वो कुछ 1 mm तक पेनिट्रेट होगा सैंपल में आफ्टर 5 सेकेंड. दैट प्रोसेस विल टेक 5 सेकेंड एंड दैट विल शो यू द रीडिंग. दिस इज योर पेनिट्रेशन टेस्ट. सो नाउ वी विल सी प्रोसीजर. क्या प्रोसीजर है इसमें कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हीट द सैंपल अंटिल इट बिकम्स फ्लूइड. बिट्यूमन जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे आपको हीट करना है, मेल्ट करना है ताकि वो अच्छी तरीके से मोल्ड में सेट हो जाए. देन पोर इट इन अ कंटेनर टू अ डेप्थ सच दैट व्हेन कूल्ड डेप्थ ऑफ द सैंपल इज एटलीस्ट 10 mm ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड पेनिट्रेशन. ठंडा होने के लिए हम लोगों को इसके क्या करना है, कंटेनर में फिल करना है और उसकी हाइट ऐसी रखनी है कि पेनिट्रेशन वैल्यू आपको प्रॉपर मिल सके. अलाउ इट टू कूल इन एन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. क्लीन द नीडल एंड प्लेस अ वेट अबाउ द नीडल.
यूज़ द वाटर बाथ टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ स्पेसिमन। इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले बिट्यूमन सैंपल मेल्ट किया, कंटेनर में एक पर्टिकुलर हाइट तक उसको फील किया, देन उसे हम लोगों ने नीडल जो है उसमें पेनिट्रेट होने वाला उसको हम लोगों ने क्लॉथ से क्लीन कर लिया ताकि उसके ऊपर कोई भी स्टिकी मटेरियल ना हो जिससे उसका पेनिट्रेशन अफेक्ट हो। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस जो भी कंटेनर है उसे हम लोग वाटर बाथ देने वाले हैं। उससे के साइज से बड़ा बीकर लेके पानी में फिल करके उस कंटेनर को हम लोग उसमें रख देंगे टू मेंटेन द टेम्परेचर। माउंट द नीडल ऑन बिट्यूमन सच दैट इट शुड जस्ट टच द सर्फेस ऑफ द बिट्यूमन। अब हमें क्या करना है, नीडल को कौन से इस पे फिक्स करना है कि वो सिर्फ सरफेस को टच कर रहा होगा, वो पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए, सरफेस को टच कर रहा होगा, उसने इसको हम लोगों को वहाँ पे उसको फिक्स कर देना है। Then start the stopwatch and allow the penetration needle to penetrate freely at same time for 5 seconds. After 5 seconds, stop the penetration. Results will be the grade of the bitumen. Take at least 3 readings. ठीक है, ये है प्रोसीजर आपकी डक्टिलिटी टेस्ट की, सॉरी पेनिट्रेशन टेस्ट की। पेनिट्रेशन टेस्ट में फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बिट्यूमन का सैंपल लेंगे, मेल्ट करेंगे, उसको कंटेनर में पोर करेंगे, देन इस कंटेनर को वाटर बाथ अप्लाई करेंगे विद द प्रोविजन ऑफ बीकर ऑफ greater quantity as compared to that container and fill with the water. After that we will clean the needle and make that location or the position of the needle just to touch the surface of that container and allow it to get penetrated for 5 seconds. After 5 seconds we will measure the readings and we will take likewise 3 readings and at last we will calculate the average of all these 3 readings. So this is your test performance. Now we will see what is the uses. Penetration test is used to measure the consistency of bitumen so that they can be classified into standard grades. Greater value of penetration indicates softer consistency, क्योंकि कैसा, जितना सॉफ्ट बिट्यूमन रहेगा उतना आपका नीडल उसमें पेनिट्रेट ज़्यादा होगा. So likewise, greater value of penetration indicates softer consistency. Generally, higher penetration bitumen is preferred for use in cold climate and smaller penetration bitumen is used in hot climate areas. Okay? So these are the uses. Now we will see grading of the bitumen on the basis of test results. So this table will show you penetration value of the bitumen and reference to that grade at temperature condition, कि कौन से ग्रेड का बिट्यूमन या कितनी पेनिट्रेशन वैल्यू का बिट्यूमन हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे. जैसे कि टेबल में आप लोग देख सकते हैं, कोल्ड मीन एनुअल एयर टेम्परेचर लेस दैन 7 डिग्री सेल्सियस, तो इसके लिए कौन सा सूटेबल है, 80/100 पेनिट्रेशन. 100 ग्राम लोड अप्लाई करने के बाद पेनिट्रेशन वैल्यू कितना मिला, 80. सो दिस टाइप ऑफ bitumen sample will be suitable for such temperature condition. Second क्या है, warm mean annual air temperature. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 60/70. 70 is a value of load is applied gradually and 60 is the penetration value of a needle. And lastly, for hot mean annual air temperature more than 24 degrees Celsius, for such 40 degree or the 40 grade bitumen is suitable and under the 50 gram of load. So this is the grading of bitumen on the basis of the test results. Next we will start with ductility test. The ductility test on bitumen will be used to determine to measure the ductility of a given sample of a bitumen and to determine suitability of a bitumen for its use in road construction. So अभी जैसे पेनिट्रेशन है, तो पेनिट्रेशन वैल्यू में हम लोगों को क्या पता करना था, कंसिस्टेंसी ऑफ बिट्यूमन, कि कितना फ्लोट होगा, ये कितना फ्लोएबल है, हाउ अप टू हाउ मच टेम्परेचर इट शुड बी इन अ सेमी सॉलिड फॉर्म. Likewise, in ductility test we will find out ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ अ बिट्यूमन सैंपल, कि कितने डिस्टेंस तक वो उस इलास्टिसिटी को बरकरार रखता है, इलास्टिसिटी नेचर शो करता है, और
कितने डिस्टेंस पे वो ब्रेकआउट हो जाता है। एपरेटस इसमें क्या लगते हैं, देखो ब्रिक्वेट ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशंस, ये होते हैं ब्रिक्वेट्स। ये क्या है, एक तरीके का मोल्ड है, ओके, इस शेप का मोल्ड है रहता है। इसमें इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले क्लीन करते हैं, इसको ऑयलिंग की जाती है एंड बिटुमन जो आप लोगों ने हीट किया वो सैंपल इसमें आपको पोर करना रहता है, ठीक है। दिस इज ब्रिक्वेट ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन। पुलिंग डिवाइस विथ डिस्टेंस मेजरिंग डायल एंड वाटर बाथ अरेंजमेंट। लैब में आप लोग अभी जब आएंगे तो देखेंगे इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है बड़ा सा, इसे कहा जाता है पुलिंग डिवाइस और द बिट्यूमन डक्टिलिटी टेस्ट एपरेटस। इसे क्या होता है, जैसे कि वर्ड ऊपर कहा है पुलिंग डिवाइस, पुलिंग मतलब यहाँ पे सैंपल को हम लोग पुल करेंगे, खींचेंगे। जैसे आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, च्युइंगम जो होता है, दो बच्चे या आप लोग दो हाथों से खींचो और एक पॉइंट आता है जहाँ तक वो एक्सटेंड नहीं होता वो ब्रेक हो जाता है। तो सेम ये टेस्ट में भी हमें वही करना है, बिट्यूमन सैंपल को हम लोगों को स्ट्रेच करना है और कौन से पॉइंट पे उसकी इलास्टिसिटी ब्रेक होती है ये आइडेंटिफाई करना है। सी इन द सेकेंड इमेज, इन द राइट साइड इमेज यू कैन सी, जो हम लोगों ने जो पहले ब्रिक्वेट मोल्ड में सैंपल फिल किया था, फिर उसमें की नीचे की बेस प्लेट हम लोग निकाल देंगे, फिर वो इस तरीके का सैंपल आपको दिखेगा। उस सैंपल को हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट में विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज फिट करेंगे और इसको ये जो पूरा है खींचने का एक्सपेरिमेंट या जो भी आप लोग इलास्टिसिटी उसकी चेक कर रहे हो उसे हमें चेक करना है अंडर वाटर बाथ। इसमें पूरा पानी फिल किया रहेगा और उस पानी में हम उसको स्ट्रेच करते हैं। सी ये इतनी हाइट तक या डिस्टेंस तक स्ट्रेच होता है, तो यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये कितने डिस्टेंस तक स्ट्रेच होगा और वो डिस्टेंस उसका ब्रेकिंग पॉइंट शो करेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग थर्ड इमेज में बीच की जो सेंट्रल डाउनवर्ड इमेज है, थर्ड इमेज, उसमें देख रहे होंगे कि जो आप लोगों ने मोल्ड फिल किया था, बेस प्लेट निकालने के बाद आप लोगों ने उसको प्लेस किया और एक जो है उसका, जैसे आप लोग समझो लेफ्ट कॉर्नर पकड़ो, लेफ्ट कॉर्नर फिक्स रहेगा, राइट कॉर्नर धीरे 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 मूव होता रहेगा एंड दैट मूविंग विल कॉज एन इलास्टिसिटी पुलिंग एक्शन इन द बिट्यूमन सैंपल एंड एट द एंड इट विल गेट ब्रेक। सो हमें वो ब्रेकिंग पॉइंट वो इतना कितने डिस्टेंस पर ब्रेक हुआ ये हम लोग इस टेस्ट में फाइंड आउट करेंगे। नाउ विल सी प्रोसीजर ऑफ टेस्ट। द बिट्यूमन सैंपल इज हीटेड to bring it in a fluid state and poured in a briquette assembled placed on a brass plate। जो हम लोगों ने ब्रिक्वेट मोल्ड देखा था जिसमें नीचे ब्रास प्लेट होती है, तो हम लोग बिट्यूमन को मेल्ट करके उसमें पोर करेंगे। देन द होल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग बिट्यूमन ब्रिक्वेट अलॉन्ग विद द ब्रास प्लेट इज अलाउड टू कूल इन द एयर। उसे हम लोग थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। देन अ हॉट नाइफ इज यूज्ड to cut the excess bitumen and also the surface is leveled with the help of a knot knife। हम लोग क्या करेंगे, हॉट नाइफ जो रहता है, नाइफ से सरफेस क्लीन कर देंगे और उसका जो भी शेप मोल्ड का है उस शेप में बिट्यूमन को लेवल्ड करेंगे। नेक्स्ट द होल असेंबली नाउ is kept in a bath maintained at 27 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 85 to 95 मिनट्स। अब इस असेंबली को हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट देखा था हम लोगों ने उसमें फिक्स कर देंगे। द साइड ऑफ द मोल्ड रिमूव्ड, जो साइड्स थे साइड्स रिमूव कर देंगे और उसे हम लोग स्क्रू करके टाइट कर देंगे दोनों साइड, दोनों प्लेट्स पे, ताकि एक प्लेट कांस्टेंट रहे, एक प्लेट उस सैंपल को खींचते हुए चले। Now the clips are pulled apart horizontally at the rate of 50 mm per minute and distance up to point of breaking of a thread is noted। कितने डिस्टेंस पे आपका जो थ्रेड फॉर्म होता है लास्ट में और ब्रेक होता है वो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। दिस डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स गिव्स द वैल्यू ऑफ डक्टिलिटी ऑफ बिट्यूमन। ठीक है, ये जो भी स्ट्रेचिंग वैल्यू मिलती है हमें बिट्यूमन की, दिस वैल्यू विल गिव यू द ductility value and that value is called as the breaking point or the elasticity breaking point of an bitumen sample. The ductility of bitumen may vary from 5 to over 100 for different bitumen grades, but for satisfactory performance it should not be less than 50. So this is the standard value is given for consideration of the ductility value of an given bitumen sample.
So this will be the starting and end position of a bitumen sample. As in the image you can see, the first is the starting point of a ductility test as the sample is poured in an instrument, and the second image is showing the end point, the point at which after stretching the breaking of an bitumen sample is being shown. ठीक है, तो एग्जाम में जब भी आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको ये इमेज बनानी रहती है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट. व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द सैंपल ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एट द एंड पॉइंट. सो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से जो है आपकी प्लेट फिक्स रहती है और राइट वाली जो प्लेट रहती है वो मूव होती रहती है हॉरिजॉन्टली, और एंड पॉइंट में आप लोगों को दिखेगा कि एक थ्रेड फॉर्म होने के बाद वो ब्रेक हो जाएगा. वो ब्रेकिंग डिस्टेंस आप लोग मेजर करेंगे. ठीक है, सो द रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ अ बिट्यूमन फॉर अ डक्टिलिटी और अंडर द डक्टिलिटी टेस्ट इज source of paving bitumen. See over here there is little bit of messy, so I can explain one by one. One value is a grade of the bitumen and another value is its ductility value, means at what distance it is causing the breaking point. Like Assam Petroleum A25 having 5 centimeter ductility value, A35 having 10 centimeter, A45 having 12 centimeter, A65, A90 and A200 having 15 centimeters value, that is ductility value, and bitumen from the sources other than Assam Petroleum like S35, S50 and S45, S65 and S90 are 75 mm value. A stands for Assam Petroleum and S stands for sources other than Assam Petroleum. So these are the grades of the bitumen, and with the comparison with that, the further value is showing the penetration value, the distance at which it will causes or it will loses elasticity property of an bitumen sample. So this is the review of today's session. Like we seen penetration value test and ductility value test. कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पेनिट्रेशन वैल्यू टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और इलास्टिसिटी नेचर और इलास्टिक नेचर और ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ बिट्यूमन सैंपल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डक्टिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो आफ्टर दिस सेशन आई विल शेयर एन PDF फाइल ऑफ ऑल these two tests, and also I recommend to go through the reference link of the video in which you will elaborate how the test practically is being performed on bitumen sample. So we will stop over here and see further two tests in next session. Till that, thank you.